यहाँ से जाके ऑलराइट, टाइम हो गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। राइट, लाइटें ऑन कर दो सारी, कर दो सारी ऑन कर दो। सही है, ठीक। सर आप भी रिकॉर्ड कर लें, अगर इंटरनेट का इशू आ जाए तो वो ताकि बैकअप पे रहे। ऑलराइट, गुड पॉइंट। मेरा भी रिकॉर्डिंग आ रहा है लिखा हुआ। Okay, let's start from today's lecture. How many people we have here? Okay, 24 participants. Good enough. Uh, so let me download Okay, so we were talking about port interfacing, and we talked about how processor and memory interact with each other. We talked about Howard architecture. This slide I have added from last time pick Howard architecture. So we have a program counter that gives 14-bit output as an address to the read-only memory, where the instructions are. What is the output of the instruction ROM? It's not data, it's instruction, which is 16-bit. The part of it goes as an address to the register file. So RAM is also called register file in PIC because it's very small. So they don't have a separate register file. So that's something very interesting about this, that RAM itself is not a RAM, but is a register file. And the output of the register file is 8-bit. So what is the size of this address that goes to the register file? That is a question mark. We'll talk about that. And we have instruction decoder here that decodes the instruction. So part of the instruction is the opcode that goes to instruction decoder, as we talked about in the last DLC course. So instruction has set bits inside, a field of instructions, and bits in an instruction, which is called a field. So that field is set for instruction opcode. It's always fixed. So how do we design an IO port? That's a diagram here. So first of all, what you do is in a processor, like in this processor, in the RAM memory, you don't have all the addresses for the variables. We must have set aside some part of the memory for IO ports. This is an example of an IO port design for 16-bit processor, which has a 16-bit address for the data port, data bus. Sorry, for the data memory or RAM, you can call. It has a 16-bit address.
So what do I have here? What is this? This is a big AND gate. This AND gate is basically a catcher that catches one particular address. So whenever that address is on the memory, output of this AND gate will become 1. यार ये माउस साइड पे कर देना, माउस कोने में ऊपर कर दिया, वो बीच में तंग कर देना. So this memory, this AND gate is basically our state catcher. So processor is always all the time generating pointers or addresses to the data memory, and there is one address that we have set aside for a particular port. So when that address appears on the data memory address bus, that means processor wants to address this address, and that is the address of the port. In this case, it is 1, 2, 3, 4 hex में. तो हेक्स में 1, 2, 3, 4 क्या बनता है, ये यहाँ पे लिखा होगा 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 3, and 0, 1, 0, 0, 4. So when this dash appears, this output becomes high. That means processor is trying to talk to this particular address. Now if we AND this with read write, if you notice here, there is no bubble. So that means that when this read write is high, the output will be high. So now the name of this signal becomes not IO, it becomes in. Because why is this in? Because we are taking data from the output word, we are inputting from output word, we are reading from the output word. So read write terminology is used for memory, whereas for IO ports it is used in and out. Just remember that. So in means read, out means write. सर तो जी सर ये इन क्यों क्या दोबारा बता सकते हैं आप? इन जो देखे ना यहाँ पे सिग्नल था, ये इसका पता नहीं है ये इनपुट करेगा या आउटपुट करेगा. अब जब प्रोसेसर ने डाटा एक्सटर्नल मेमोरी से रीड करना होता है तो रीड पिन, रीड राइट पिन क्या होगी, जरा छोटा लिखा हुआ है, ये रीड राइट पिन क्या होगी जब प्रोसेसर ने डाटा रीड करना है एक्सटर्नल करना हो, तो इस पिन का क्या क्या स्टेटस होगा. डब्ल्यू पे क्या है, बार है, और आर पे क्या है, विदाउट बार. तो जब इसने रीड करना है तो ये पिन क्या होगी, क्या इसको एक्टिव हो करेंगे, किस तरह एक्टिवेट करेंगे, जब प्रोसेसर ने रीड करना है मेमोरी से. करना है तो वो, राइट करना है तो 0 होगा. हाँ, रीड करना है तो 1. तो इसका मतलब जब ये रीड कर रहा है प्रोसेसर 1 होगा, और अगर उस वक्त प्रोसेसर इसी पोर्ट से भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो भी 1 होगा. फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर टाइम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये दोनों 1 होंगे. जब ये दोनों 1 होंगे तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, 1. इस आउटपुट का हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको इन दिया है, क्योंकि ये कब 1 होगी, जब प्रोसेसर रीड करा रहा होगा मेमोरी से. अगर ये प्रोसेसर राइट कर रहा होगा तो ये 0 होगी, तो ये आउटपुट 0 होगी. तो इसको हम इन कहेंगे. इन मींस रीड, पोर्ट से रीड करने को इन कहते हैं. ठीक है सर, समझ आ गई. तो ये आउटपुट जो है, ये जाती है यहाँ पर एक ट्राई स्टेट बफर को, जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे. ट्राई स्टेट बफर अगर याद है या नहीं, कि दोबारा बता दूं कि ट्राई स्टेट बफर क्या होते हैं. हाँ भाई, याद है आप लोगों को ट्राई स्टेट बफर क्या होते हैं? यार इसमें वही ऑन करो चैट, और
फिर बता दें फिर भी एक बार, मेमोरी रिफ्रेश हो गई। चैट आ जाए यहाँ पे और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। ये क्या हो गया यार, जरा ठीक करो इसको। नीचे चैट प्रेस करो, पार्टिसिपेंट्स प्रेस करो। गैलरी व्यू में चले जाओ। ग्रिड व्यू में नहीं आएंगे, कैसे आते हैं पार्टिसिपेंट? चैट को करो ऑन। हाँ, इनको इधर ही खुलना चाहिए था, किसी वजह से पता नहीं ये क्यों नहीं खुल रही। चलो देख लेंगे बाद में, रहने दो ऐसे ही। चैट को ऑन कर दो, पार्टिसिपेंट्स को भी ऑन कर दो, देख लेते हैं। स्क्रीन, उनको तो स्क्रीन नजर आ रही होगी, उनको ये नहीं नजर आ रहा। स्क्रीन इधर मुझे नजर आ रही। बस ठीक है, ऐसे ठीक। ओके, सो दिस इज ट्राई स्टेट बफर का मैं कह रहा था कि व्हाट इज अ ट्राई स्टेट बफर। तो ये अली नूर या कोई बताया जरा, असना बताएं जरा क्या होता है ये ट्राई स्टेट बफर। अली नूर कोई बताए, असना, यहाँ पे और भी लोग हैं। किधर गए सारे? ईमान, हसन, कोई तो बताए ट्राई स्टेट बफर क्या होता है। उमैर, वो तो चैट में ही आंसर लिखें कोई, पता लगे आप लोग बिल्कुल आपका जो है ना वो जिंदा है। क्या हो गया है? सर ये बफर होता है जिसमें शायद एनेबल होता है। हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ ये एक बफर होता है जिसमें एनेबल होता है, मेरा ख्याल है ट्राई स्टेट बफर वो ये होता है। ईमान गिलानी, गलत ईमान। और कोई? रोशन? सर जिसके अंदर इनपुट आउटपुट इनेबल होता है और स्विच एज अ स्विच एक्ट करता है ट्राई स्टेट बफर। ये कौन है? आवाज किसकी है ये? हाँ, हाँ जी मुनीब। आवाज में सब पता लगा किसकी है। सर मुनीबा। हाँ, राइट। So Ahmed Shadad is uh, on on the money, as they say. So it's has three states. जब परमानेंट मार्केट जरा जूम कर दो। हाँ, परमानेंट मार्केट जरा दूर ले जाना, इस पे जूम करो। क्यों नजर नहीं आ रहा यार? है? और जूम कर दो। हाँ, यहाँ ठीक। So this is tri-state buffer with enable. So when the enable is 1, this is short circuit. When the enable is 0, this is open circuit. It's not like an AND gate कि जिसकी आउटपुट या 0 हो सकती है या 5 वोल्ट हो सकती है. Open circuit means it has no voltage. So this is what a tri-state buffer was.
Another symbol for a tri-state buffer, you may find something like this. इसका क्या मतलब होगा? Is a bidirectional tri-state buffer, bidirectional. Enable is one. अगर ये वोल्टेज हाई है, ये लो है, तो करंट इधर से इधर को फ्लो कर सकती है. Enable is one. अगर ये वोल्टेज हाई है, ये लो है, तो करंट इधर से इधर को फ्लो कर सकती है in both direction. But when enable is zero, is open circuit. इस केस में ये है कि when it is one, only voltage can go in this direction. सर ये जो बाई डायरेक्शनल बफर है, अगर दोनों हाई हो और एनेबल भी हाई हो तो फिर किस डायरेक्शन में करेगी? वेरी गुड, वो बहुत अच्छा सवाल है. मतलब ये भी अगर +5 वोल्ट है, ये भी +5 वोल्ट है, लॉजिक वन है दोनों, तो फिर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी? दोनों साइडों पे +5 है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों साइडों पे +5 है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0. So what is the voltage across this? 0. So there will be no current. I is equal to V over R. R is 0. Sorry. R is 0. Short circuit. Okay, sir. But V is also 0. So in although 0 over 0 is undefined in mathematics, according to Ohm's law, it seems कि मतलब मैं ये स्टेटमेंट मेरे किसी को और को ना बताएं, वो मेरे पीछे ही ना पड़ जाएं. According to Ohm's law, if voltage is 0 और उसको डिवाइड करें, करंट इज आल्सो 0, तो आंसर इज 0. Resistance is also 0, voltage is also 0, current is also 0. I is equal to V over R. लेकिन सर करंट तो आ रहा है ना. Voltage is 0, resistance भी शॉर्ट सर्किट हो गया, 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0 over 0. पोटेंशियल डिफरेंस ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0. 0 भी है, शॉर्ट सर्किट भी है, करंट भी 0 है, तो 0 over 0 I किसके बराबर होगा? 0. इंटरेस्टिंग. मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था कि 0 over 0 is 0, is not undefined, it is 0. Anyway, so when tri-state buffer is activated, what happens to these 8 tri-state buffers are in one single IC or one single circuit? 8 tri-state buffers are there. सर इसमें एक चीज समझ नहीं आई. क्या? सर ये आपने तो 3 डिफरेंट सिचुएशन बनाई हैं ट्राई स्टेट बफर की. हाँ हाँ, ये 4 बल्कि एक नीचे भी बनाया आपने, डबल बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट बफर. वो हाँ, ये बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शन हो या यूनि डायरेक्शन हो, बात तो एक ही है कि जब इनेबल 1 होगा तो ये हो जाएगा. अच्छा ठीक सर. इनेबल इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा. इसमें भी यही दोनों होंगे, लेकिन दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकती है. तो डाटा बस जो है, फॉर एग्जांपल डाटा बस आईसी को के साथ अगर लगाते हैं, तो कहीं दफा वहां पे बाई डायरेक्शन बफर भी कई जगह सर्किट्स में यूज करने पड़ते हैं कि ना आप डाटा रीड हो सके ना डाटा राइट हो सके. लेकिन बहुत कम है इनका यूज, बहुत कम है. अगर आपको कभी ये सिंगल, यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कभी ये सिंबल नजर आ जाए ना, तो ये घबराना नहीं है आपने. मेरी कौम के लोगों, घबराना नहीं. इसका मतलब है कि ये ट्राई स्टेट बफर हैं, लेकिन वो बाई डायरेक्शनल है. अक्सर हम इन्हीं का बात करेंगे इसका. तो अगर किसी आईसी के अंदर इस तरह की आउटपुट दी हो, ये कोई आईसी है, इसकी कोई बस आउटपुट है,
ये ट्राई स्टेटेड यहाँ का सिंबल बनाओ ट्राई स्टेट का, तो इसका क्या मतलब है, जरा फोकस करना है इसमें। हाँ, करते रहा करो साथ। तो ट्राई स्टेट का मतलब ये है कि ये वाला जो है आउटपुट, ये ट्राई स्टेटेड है। दैट मीन्स कि जब ये इसकी इस आईसी की नेबल 0 होती है, आईसी की नेबल 0, तो ये कि पूरी की पूरी बस जो है 8 बिट है या 16 बिट है या 32 बिट है, ये ट्राई स्टेट हो जाती है, मतलब ये इस आईसी से डिस्कनेक्ट हो जाती है व्हेन नेबल इज 0। अब कोई करंट इधर से इधर फ्लो नहीं कर सकती, कोई करंट इधर से इधर नहीं फ्लो कर सकती। तो बड़ा पावरफुल फीचर है ये ट्राई स्टेट बफर का। इज लाइक अ हार्डवेयर स्विच जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो अब ये चीजें जो है ना, ये देखें, अब लेक्चर में जब बात निकलती है तो साथ साथ डिस्कस हो जाती हैं, अदरवाइज आपको ये बुक में तो नहीं मिलेंगी कहीं भी। किसी बुक में आपको, माइक्रो कंट्रोलर की बुक में ये सर्किट भी नहीं मिलेगा जो अभी हम स्क्रीन पे डिस्कस करें। तो 8 बिट ट्राई स्टेट बफर फिर क्या होता है, वो इनेबल हो जाता है। यार ये कौन ले जाता है, ये कल हमने निकाला था, ये कुर्सी भी और ये स्टूल भी फिर कोई ले आए इधर ही। मैंने कहा था ना कि इधर स्टूल वगैरह ना रखें, बस खाली एरिया होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो कोई नहीं। राइट, सो ये ट्राई स्टेट बफर जो है, जब ये प्रोसेसर कहता है रीड करो बाहर की दुनिया से, तो ये ट्राई स्टेट बफर जो है, ये उस वक्त ये वाला सिग्नल एक्टिवेट होता है। ये सारे के सारे 8 ट्राई स्टेट बफर हैं इसके अंदर, सारे के सारे बस इसको कहेंगे। और 8 ट्राई स्टेट बफर का एक, समझ लें कि 8 बिट बफर को ऑक्टल बफर इसको कह सकते हैं आप, ऑक्टल बफर। ये एक्टिवेट होते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आउटपुट, दुनिया की आउटपुट जो है वो प्रोसेसर की डाटा बस से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और ये डाटा जो ना प्रोसेसर के रजिस्टर में चला जाता है। और इधर से जो है ना, आउटसाइड वर्ड से क्या आपको मिलता है, आउटसाइड वर्ड से आपको ये यहाँ पे देखें, ये आपको मिल जाता है जो भी आपने स्विचेस लगाए हैं उनका स्टेटस। अगर स्विच हाई है, लो है, +5 है, ग्राउंड है, उस वक्त मोमेंट टाइम, उस वक्त थोड़ी देर के लिए प्रोसेसर अपनी खिड़की खोलता है और ये डाटा उठा लेता है फॉर जस्ट वन सिंगल इंस्ट्रक्शन लाइन। जब वो डाटा उठाता है वो रजिस्टर में चला जाता है, बाहर रजिस्टर में सेव रहता है जब तक उस रजिस्टर में आप कोई और चीज राइट ना करें, क्योंकि रजिस्टर तो डी फ्लिप फ्लॉप है। तो उस वक्त इसका मतलब कि जो भी स्टेटस इन 8 आउटसाइड वर्ड पिन के ऊपर होता है, अगर वो हाई हैं, लो हैं, जो भी हैं, all of that data goes into the register and stays there until there is another read command. So until we read from the outside word, so this could be an input port. This outside, this is given on the processor pins. इस processor pin से ये connected होते हैं। So these are connected, given on the processor pins. So as a result, you can see them on the pin. So this is how it works, very simple. So now let's talk about the output port. Output port is is when you want to send data from the processor to the pins on these pins. So processor wants to read the output port. This port address should be different because it has the processor hardware states that this is a output port. So when one processor wants to read from this output port, ये किसी इंजीनियर ने सेट किया हुआ है ये एड्रेस के, इस एड्रेस पे हम आउटपुट पोर्ट बुलाएंगे, इस एड्रेस में कोई वेरिएबल नहीं रख सकते आप। फॉर एग्जांपल दिस कुड बी एड्रेस ऑफ पोर्ट सी,
You cannot create a variable pointer which is equal to the 1, 2, 3, 4, 3, 5 because that is reserved for the output port. So for processor, when you declare variable, processor will never set one of the variable pointer or address in the memory equal to this. Well, because these are processor configuration, the compiler knows that these addresses are, the assembler knows that these addresses are reserved for your output port. When we make a particular project in a processor, these addresses become known to the compiler, that these the particular addresses are where there are different ports. And they're all given in a configuration header file. So when you give an output address, processor wants to output something, it gives first step क्या करेगा? It will give an address. शायद पहला स्टेप करेगा कि क्या आउटपुट करना है, वो कोई रजिस्टर होगा. रजिस्टर की वैल्यू विल बी कनेक्टेड टू द प्रोसेसर डेटा बस. So here the register value is variable x, variable y. उसके अंदर जो value है that comes over here D0 से D7. Processor gives an address. That address, when it is comes on the data bus or address bus, this output becomes activated. AND gate is the high speed AND gate, and just when it becomes this equal to this, this output becomes activated. And notice why is a bubble here? This bubble here, why is this here? Why is this here this time? Anyone? Usman Salim, ये बफर क्यों है भाई? उस्मान? जी सर क्या सवाल है? सवाल ये कि ये बफर यहाँ पे क्यों है? बबल. बबल. मेरा ख्याल है सर ये कन्वर्ट करता है इनपुट को, मतलब 1 आर तो 0 कर देता है, 0 आर तो 1 कर देता है. इन्वर्टर है तो ये जब प्रोसेसर ने डाटा आउट करना है तो ये बबल क्यों लगाया हमने? कन्वर्ट करने के लिए होता है वैसे. हाँ भाई रोशन. सर पहले रीड हो रहा था, अब हमने राइट करना, इसलिए बबल है. हाँ ये कौन है? सर अब्दुल्ला. अब्दुल्ला रोशन से पूछने दो ना यार. रोशन सर. का माइक ही नहीं ऑन. हाँ चलें, जब राइट करेगा प्रोसेसर को पता है कि ये यूजर जो है, जब यूजर ये कहता है ना कि पोर्ट बी इक्वल टू एक्स, when प्रोसेसर यूजर ये कहता है पोर्ट बी इक्वल टू एक्स, तो हार्डवेयर को पता चल जाता है कि ये रीड ऑपरेशन हो रहा है पोर्ट के साथ या राइट ऑपरेशन हो रहा है. तो आप कोड जाता है, आप कोड इंस्ट्रक्शन डिकोडर को, और मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन डिकोडर फिर रीड राइट सिग्नल जनरेट करता है. जब ये वाला काम होता है तो उसको पता है कि ये मेमोरी से आउटसाइड वर्ड को राइट हो रहा है. प्रोसेसर राइट करने की कोशिश कर रहा है, ये वैल्यू इस एड्रेस पे राइट कर रहा है, इस रजिस्टर को इस पोर्ट पे राइट कर रहा है. तो उस वक्त वो इंस्ट्रक्शन को उसका स्पेशल कोड होगा इंस्ट्रक्शन का. उस आप कोड से प्रोसेसर को विल नो कि दिस इज अ इंस्ट्रक्शन राइट कोड एंड इट विल मेक रजिस्टर रीड राइट सिग्नल इक्वल टू 0. So this is not कि कोई बाहर से कोई अचानक कोई हो जाता है कोई, ये everything is done very understandably. It's not no mystery here. When you are writing to the port B knows it's a write operation. Processor knows it's a write operation and read write. It sets everything, and that includes read write
सेट दिस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। फर्ज करें x को आपने ऊपर कहा हुआ है कहीं कि x इज इक्वल टू 0x AA, तो डेटा बस पे क्या आ जाएगा? डेटा बस बिकम्स AA, और एड्रेस बस पे क्या आ गया? पोर्ट बी का एड्रेस। इस पर्टिकुलर केस पे एड्रेस बस का क्या, पोर्ट बी का एड्रेस क्या होगा? 0x1235। So when we say port B equal to X, ऊपर हमने कहा x is equal to 0xAA. When we say this, the processor port B is translated from the processor configuration file that this is equal to address 0x1235. Value of x is वैल्यू रजिस्टर के का जो भी नंबर है वो कोई और चीज है, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो कोई और चीज है। तो इस x की वैल्यू जो है 0x वो डेटा बस पे आ जाती है। तो मींस के मेमोरी के अंदर इस एड्रेस पे x को राइट करो which is equal to 0xAA। अब ये XAA आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर नजर नहीं आएगा। इसके अंदर x एक रजिस्टर है which could be R0, R1, R2, R7. There are 255 registers. So it could be any register between 0 and 255 x। उस रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है वो ये वाली पड़ी है। और ये एक राइट ऑपरेशन है, मेमोरी राइट ऑपरेशन है कि इस पोर्ट एड्रेस पे ये वाली वैल्यू राइट करो, तो रीड राइट सिग्नल जो है वो 1 हो जाता है। सो ये वाला एड्रेस x का जो पॉइंटर है वो हो सकता है 0 से 255 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो x को जब कंपाइलर ने मेमोरी अलॉट की x तो उसने मेमोरी को किसी एड्रेस पे रखा। वो किस एड्रेस पे रखा उसको, वो इसका पॉइंटर है x का। आपको ये x नजर आ रहा है, एक्चुअली ये एड्रेस है मेमोरी, डेटा मेमोरी के अंदर किसी वेरिएबल का, और उस डेटा मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल पे हमने यहाँ पे 0xAA रखा है, वो उस डेटा मेमोरी के उस रजिस्टर में चला गया। तो x की कोई वैल्यू बता दें क्या होनी चाहिए जब कंपाइलर ने x को, एड्रेस है ये 0x है, इसकी वैल्यू बन जाएगी ना। जब मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 0xAA तो ये तो इसकी वैल्यू बनेगी ना। तो इसका मतलब क्या है 0xAA का? इसका क्या मतलब है? तो समझ नहीं आई मुझे ये। x इज इक्वल टू 0xA में एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक बाइट साइड वेरिएबल है, 8 बिट का वेरिएबल है x, इसको मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 0xAA। एक मैंने कहा ना कि हम हेक्स में नंबर इंजीनियर राइट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पोर्ट पे मैंने कोई वैल्यू राइट करनी है तो मैं इसको 0xAA किसके बराबर होगा, ये वैसे किसके बराबर होगा, A is 10, 170 के बराबर है ये। ठीक है सर, ठीक है, समझा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 170। वो उसका मुझे मतलब समझ नहीं जा रहा। मैं 0xAA देता हूं तो वो बाइनरी में बन जाता है x इज इक्वल टू 0B0 1010 ये है A, 1010 ये है A। मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि जब मैं इस पोर्ट पे राइट करूं x को तो एक एलईडी ऑन हो जाए, एक ऑफ हो जाए, एक ऑन हो जाए, एक ऑफ हो जाए, एक ऑन हो जाए, एक ऑफ हो जाए, एक ऑन हो जाए, एक ऑफ हो जाए।
जब ये भी रख सकता था 0x0b1010, लेकिन मैंने बताया इंजीनियर्स को हेक्स बाइनरी से हेक्स में जाना उनके लिए बड़ा आसान होता है। उनको पता है कि ये ए है ये भी ए है, तो वो इस तरह लिखेंगे 0x ए, और मकसद उनका ये है कि एक एलईडी ऑन ऑफ करना है एंड ऑफ द डे। तो आपने एक एलईडी ऑन ऑफ टास्क देखें, आपने एक एलईडी ऑन ऑफ करना है, आपने ये एलएसबी एलईडी ऑफ करना है, एमएसबी 1 करना है, अल्टरनेट एलईडीज को ऑन ऑफ करना है। तो आप देखते हैं कि ये मैं राइट करूंगा तो वो हो जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट मैं पोर्ट पे राइट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक्स में राइट कर लूं ताकि कल हो सकता है मुझे इसको फिर यूज करना पड़े, तो मैं एक्स को करता हूँ 0x AA। अब ये एक वेरिएबल असाइन हो गया जिसकी वैल्यू है AA। अब जब मैं पोर्ट बी पे राइट करता हूं तो क्या होगा, उसके लिए पहले तो पता होना चाहिए कि एक्स वेरिएबल कहां पे बनेगा। एक्स किसी रैम के अंदर कोई पॉइंटर, रैम में कोई रजिस्टर नंबर होगा, फर्ज करें ये रजिस्टर नंबर है, एनी रजिस्टर नंबर बिटवीन R0 एंड R255, तो फर्ज करें ये R200 है, तो आई एम सेइंग मेक R200 विच I know is X, कंप्यूटर नोज, कंपाइलर नोज के मैंने इसको रजिस्टर नंबर 200 असाइन किया। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर ये जहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी के बाद ये स्क्वायर ब्रेस 1 2 3 5, हाँ हाँ तो सर एक्स के भी अराउंड स्क्वायर ब्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स में वैल्यू है हमने वो डालनी है। चलो यार, ये यूजुअली रजिस्टर की जो के साथ जो है ना वो डालते नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि ये बेसिकली ये रजिस्टर जो है ना R200 है, ये इसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूं R200। सो देखें तीन चीजें हैं, एक है एक्स, हर वेरिएबल के साथ दो चीजें अटैच होती हैं, उसका रजिस्टर नंबर और उसकी वैल्यू। एक्स क्या है, एक वेरिएबल, इसका रजिस्टर नंबर क्या है 200, इसके अंदर वैल्यू मैंने यहां पे क्या डाली है ए। तो रजिस्टर नंबर और वैल्यू, और अब इस वैल्यू को मैं चाहता हूं कि मैं इस पोर्ट पे राइट करूं, तो मैं इसको कहता हूं पोर्ट बी इक्वल टू एक्स। अब इंस्ट्रक्शन में जब मैं इसको इंस्ट्रक्शन को जाके देखूंगा तो जो 16 बीट की इंस्ट्रक्शन होगी उसमें कहीं लिखा होगा 1 2 3 4 5, इस डेस्क पे राइट करो, और कहीं लिखा होगा एक्स, और एक्स की वैल्यू होगी 200, उसमें AA का कोई जिक्र नहीं होगा। 200 जाएगा जब रजिस्टर फाइल को, तो रजिस्टर फाइल के कंटेंट्स डाटा बस पे अपीयर होंगे, और वो क्या होंगे AA, तो डाटा बस पे आएगा AA। So it's just like that. So अगर आप इसको पिछली किसी मेमोरी उस पे जाके देखने की कोशिश करें, तो यहाँ 14 बिट एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है x इज इक्वल पोर्ट b इज इक्वल टू x, उसमें से इंस्ट्रक्शन आई, उसमें राइट का ऑपरेशन हुआ, इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने रीड राइट सेट किया। एड्रेस क्या गया रजिस्टर फाइल को 200, क्योंकि एक्सेस का एड्रेस था 200। उस 200 एड्रेस के अगेंस्ट यहां से डेटाबेस पे क्या वैल्यू आई 0xAA। राइट, सो दिस इज, सर ये बता देंगे कि एड्रेस 200 कैसे किया? क्योंकि जब कंपाइलर ने एक्स को डिक्लेयर, मैंने ऊपर लिखा था ना, ऊपर सी में मैंने कहीं लिखा था, इधर करना यार, अनसाइंड शॉर्ट एक्स लिखते हैं ना आप, Yes, आती है ना सी की प्रोग्रामिंग, आपने लिखा अनसाइंड शॉर्ट एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल है,
अब कंपाइलर ने इसको मेमोरी में, रैम में इसके लिए जगह बनानी है ताकि जब भी आप एक्स कहें तो उसके अंदर वैल्यू जा सके। तो कंपाइलर जब इसको एक्स को रिजॉल्व किया तो उसने एड्रेस एक्स को वेरिएबल रजिस्टर नंबर दिया 200। अब ये मुझे आप नहीं पूछ सकते कि कंपाइलर ने क्यों 200 क्यों दिया उसको, इतने 255 रजिस्टर से कोई और क्यों नहीं दे दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपाइलर को 200 एक्स के लिए पसंद आया, उसने कहा ये एक्स जो है ना मुझे लगता है इसको 200 का एड्रेस मुझे देना चाहिए, क्योंकि एक्स जो है ना ये बंदा ये है ऐसा ही है, इसको 200 का एड्रेस देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। तो उसने एक्स को साइन किया 200। अब जहां भी एक्स आएगा ना बाइनरी कोड में उसको 200 लिखा होगा डेसिमल में, जो कि बाइनरी में जो भी बनता है वो लिखा होगा। जहां भी एक्स के जिक्र आएगा, वो एक्स तो हमारे इंसानों के लिए पढ़ने के लिए ना यार, तो जहां भी आपके मशीन कोड में कहीं भी एक्स का जिक्र आएगा आपके प्रोग्राम में, तो वहां पे 200 लिखा हो, जो भी उसकी बाइनरी बनती। तो दिस इज हाउ इट इज। सो देखिए हर चीज क्या मतलब ये कि दिस इज, मैं आपको साथ साथ जो है ना हाई लेवल से, मैं सिर्फ ये बता ही नहीं रहा, मैं आपको साथ साथ हाई लेवल से लिंक भी कर रहा हूँ कि किस तरह कंपाइलर काम करते हैं, किस तरह से फिर वो हार्डवेयर में जाता है सब कुछ, और कैसे वो हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करती है। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा अनसाइंड शार्ट एक्स, तो बाइनरी में जाएगा तो एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उसके पॉइंटर से या रजिस्टर नंबर से। इसको हम पॉइंटर कह लें या रजिस्टर नंबर कह लें। सो द एड्रेस हियर इज रजिस्टर नंबर, दैट डाटा मेमोरी को जो एड्रेस जा रहा है वो रजिस्टर नंबर जा रहा है। दिस रजिस्टर नंबर इज बिटवीन 0 to 255, so that address is 8 bit। सर जी सर जो वेरिएबल का एड्रेस है उसकी हाँ वो हाँ इंस्ट्रक्शन की जो 16 बिट है उनमें से ही निकलता है। हाँ बिल्कुल उसमें से निकलता है। लेकिन सर उसको जो इंस्ट्रक्शन वाली 16 बिट है उसको कैसे पता कि कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल का एड्रेस यूज करना है, क्योंकि वो शुरू उसने, में आपने कंपाइल करते वक्त कहा नहीं पोर्ट बी इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ वहाँ वो कंपाइल करते हुए जब वो कह दिया पोर्ट बी इज इक्वल टू एक्स, तो उसने देख लिया कि जो इंस्ट्रक्शन है वो असाइनमेंट की है, तो 14 हाँ बिट का एड्रेस चला गया इंस्ट्रक्शन वाले रोम में कि असाइनमेंट करनी है। हाँ और हाँ आगे से 16 बिट जो निकली है उनमें से एक वो इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करने के लिए, और दूसरे 8 उसको कैसे यहाँ पर वेयर डिड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल कम इन यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन के अंदर ही 8 बिट की फील्ड होती है ना, आप कोड तो 6 बिट का है। ठीक है सर, लेकिन इंस्ट्रक्शन वाले जो रोम है उसके अंदर जो सारे वो जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंस्ट्रक्शन वाले रोम के अंदर जो सारे वेरिएबल के एड्रेस भी आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हर प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन एक लाइन की इंस्ट्रक्शन बनती है। ठीक है। जो आपका प्रोग्राम है तो आपने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0x AA, तो ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है। याद है ना हमने पढ़ा था कि इमीडिएट वैल्यू साइन हो रही है एक्स को, यस सर। तो ये एक इमीडिएट वैल्यू है एक्स को साइन हो रही है। ये बेसिकली एड्रेस नंबर 200 है। ये सारी मिला के जो है वो एक कोड बनेगा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट है, मेमोरी रजिस्टर नंबर R200 में वैल्यू डालो 0xAA, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि ये वाली वैल्यू डाल दो R रजिस्टर R200 में। ठीक है सर। अब मैंने कहा पोर्ट बी इज इक्वल टू एक्स, अब मैंने लिखा है, आप नहीं कह सकते कि भाई ये आपने एक्स क्यों लिखा है, वाई क्यों नहीं लिखा, जेड क्यों नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा है पोर्ट बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये मेरा काम है।
उसका ये मतलब होगा कि पोर्ट बी की जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर x की वैल्यू R200 को ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया आपके कहने पे, R200 को मेमोरी रेस पोर्ट बी में डाल दो, विच इज 0x, यहां इस डायग्राम से हिसाब से 1 2 3 5। ठीक है सर। तो ये मैंने लिखा था, इसकी भी एक इंस्ट्रक्शन बनी, इसकी भी यहाँ पे भी मैंने कह दिया x प्लस प्लस। मेरा दिल किया मैं x को इंक्रीमेंट करता हूं। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रामर ने क्यों किया ये, इसको क्या मुसीबत पड़ी थी। अब पहले वो एक बिट चलाना चाह रहा था, एक ऑफ करना चाहिए, अब उसने इसको इंक्रीमेंट क्यों कर दिया, मेरी मर्जी। तो मैंने x प्लस प्लस किया है तो उसके भी कोड बनेगा, वो होगा R200 इज इक्वल टू R200 प्लस एन इमीडिएट वैल्यू 1, या इंक्रीमेंट जाएगा। याद है ना हमने पढ़ा है कि ALU जो है वो इंक्रीमेंट भी कर सकता है, डिक्रीमेंट भी कर सकता है, तो ये वाला कोड बनेगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हर एक इंस्ट्रक्शन की एक कोड बनता जाता है। जो भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एक एक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये वाला कोड इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ उसमें अगेंस्ट प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रन करता। हाँ, अगर मैं कर दूं वेरिएबल x इज इक्वल टू 100, तो फिर वो दो काम करेगा मेन में जाने से पहले। वो खुद कंपाइलर ये वाला कोड रन करेगा कि एक x को एक 200 वैल्यू R रजिस्टर असाइन करेगा, और उसके बाद उसके अंदर इमीडिएट वैल्यू 100 भी मूव करेगा। ये कोई x को 200 असाइन करने से कोई मैजिकली उसमें 100 की वैल्यू आ नहीं जाएगी। उसके लिए प्रोसेसर प्री मेन कोड होता है, एक उसको प्री मेन कोड चलता है। उसके बाद वो कहता है जंप टू मेन, गो टू मेन, स्टार्ट मेन। तो जो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किए हुए हैं ना मेन से पहले, वो सारे के सारे प्री मेन कोड में इनिशियलाइज होते हैं। उनके लिए बेचारे कंपाइलर को सारा काम करना पड़ता है। वो रजिस्टर्स बनाता है किसी एड्रेस के साथ, उनको एसोसिएट करता है। तो जितने भी रजिस्टर आपके होते हैं वो एड्रेसेस से एसोसिएट होते हैं। इसीलिए इसमें जो है ना, चूंकि डायनामिक लोकेशन नहीं है, तो आप जितने भी रजिस्टर हैं वो मेन से पहले बना देते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, और उन सबको वो फिर रजिस्टर में वैल्यू असाइन कर देता है कि इसको ये रजिस्टर देना है, इसको ये देना है। So when it comes to then when this address appears, now this bubble means that processor is trying to write to the outside world. So now this output is not enable for tri-state buffer. It is a clock for an 8-bit register. So जो आपने address दिया था in this example 0xAA, 1 bit 1, 8 bit 0 यहाँ पे आ गई हुई है। तो जब ये आपकी पोर्ट का 8-bit रजिस्टर है, इसको हम कहते हैं पोर्ट 1 2 3 4 5। इस रजिस्टर को हम कहेंगे ये पोर्ट 1 2 3 4 5 है, जिसे पोर्ट बी भी कह सकते हैं आप। तो जब आप यहाँ पे प्रोसेसर से राइट करते हैं तो इस 8-बिट रजिस्टर में डाटा राइट हो जाएगा सर। और इसमें आउटपुट पे आपने एलईडी लगाए हुए हैं, एक एलईडी ऑन हो जाएगा, एक ऑफ हो जाएगा, एक ऑन हो जाएगा, एक ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद प्रोसेसर अपना काम शुरू कर देगा, कोई और वेरिएबल सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डाटा आपने 8-बिट रजिस्टर में क्लॉक कर दिया है ना, ये तो वहीं पे रहेगा। जब रीड करता है प्रोसेसर तो सिर्फ एक मोमेंट टाइम, ट्रांजिटरी टाइम के लिए प्रोसेसर आउटसाइड वर्ड से कनेक्ट होता है और जो भी वैल्यू होती है वो रीड कर लेते हैं। जब राइट करते हैं ना, तो जब जो वैल्यू राइट होती है वो पोर्ट पे रिटर्न रहती है, इट स्टेज देयर until you rewrite something else on the port. It's not a momentarily थोड़ी आउटपुट 1 हुई, आउटसाइड वर्ड से वो पढ़ी नहीं जाएगी। वो एक इंस्ट्रक्शन के लिए तो 1 नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि काफी देर तक आउटपुट पे रही है, तो इसलिए आउटपुट पे रजिस्टर लगाते हैं। So all output ports in the world are made up of registers. All input ports in the world are made up of tri-state buffers.
हाँ जी, क्वेश्चन, वो पूछ रहा था क्वेश्चन बीच में। एनीवन? सर जी जी। सर अगर हम ये आउटपुट वाले केस में भी ट्राई स्टेट बफर यूज करें तो उससे क्या मसला होगा? उससे ये होगा कि मोमेंटरली आउटपुट अपीयर होगी। एलईडी जो है ना, एक ये वहाँ 11 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो रफली अबाउट जो ना एक इंस्ट्रक्शन जो ना 4 माइक्रो सेकंड के लिए जलती है, चलती है एक इंस्ट्रक्शन। ओके ओके तो फिर क्या होगा कि ये आउटपुट कितनी देर के लिए हाई होगी? सर कोई कुछ 4 माइक्रो सेकंड। हाँ, जबकि जब आप रीड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त ये कनेक्ट होता है सिर्फ 4 माइक्रो सेकंड के लिए। ठीक है। अगर ये पक्का ही कनेक्ट हो जाए तो फिर तो डाटा बस को आप पकड़ के बैठ गए ना, यू हैव हॉग द डाटा बस। डाटा बस में तो प्रोसेसर ने और भी पोर्ट्स के ऊपर राइट करना होता है। ये डाटा बस सिर्फ इस ट्राई स्टेट बफर के लिए तो नहीं रखी हुई ना, तो ये प्रोसेसर जो ये चेंज हो, तो ये सिर्फ 4 माइक्रो सेकंड के लिए कनेक्ट होता है, और ये वैल्यू किसी वाई रजिस्टर में या किसी और रजिस्टर में चली जाती है, वहां पे स्टे करती है। फिर इस केस में ये रजिस्टर कनेक्ट हुआ, डाटा में आ गया, अब ये डाटा बस फ्री है, इसमें जो भी वैल्यू जा रही है, क्योंकि डाटा बस तो प्रोसेसर में बहुत जगहों पे जा रही होती है। तो अब आपके लिए सेल्फ टेस्ट है, ये आपके क्विज में भी आ सकता है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस यू नोटिस बिटवीन इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, उसके दोनों के डिजाइन में क्या फर्क है? जो डिजाइन में ये फर्क देखें आप, क्या फर्क है, कोई बताएगा? एक ये फर्क है, एक डैश फर्क है, एक रजिस्टर फर्क है, यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर होता है, यहाँ पे रजिस्टर होती है। दूसरा इंस्ट्रक्शन का फर्क है। राइट करने के लिए आप कहेंगे पोर्ट बी इज इक्वल टू एक्स, और रीड करने के लिए आप क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू पोर्ट बी। वाई कह लें, वो एक्स को मैंने वो उसमें एलईडी जलाने वाले रखे हुए हैं ना कि कौन सा जलाना है। वाई में मैं स्विच स्टेटस पकड़ रहा हूं किसी पोर्ट का, तो पोर्ट सी कह लें उसको। पोर्ट सी का एड्रेस है 1234, पोर्ट बी का एड्रेस है 0x12345। अब एक्स का रजिस्टर नंबर है R200, वाई का रजिस्टर रखा हुआ है उसने R199। तो एवरीथिंग ट्रांसलेट्स टू सम नंबर्स। हाई लैंग्वेज से हर चीज नंबर में चली जाती है, इसका बाइनरी बन जाता है, उसका भी बाइनरी बन जाता है, और इंस्ट्रक्शन में सारा कुछ बाइनरी में ही जाता है। तो ये वाली इसकी आरटीएल क्या होगी? इसकी आरटीएल होगी मैम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, मैम 1234 इज इक्वल टू R199। ये इसकी है, इसके अंदर भी ब्रैकेट डाल दें, है ये तो मैंने राइट कर दिया, सॉरी। इसमें है R99 इज इक्वल टू मेमोरी रजिस्टर मेमोरी लोकेशन 0x1235। राइट के लिए 4 है, हाँ राइट के लिए 4 है, और रीड के लिए 5 था। ये मेमोरी पोर्ट से रीड हो रहा है, वो 1234 होगा। अरे मैं इसको करेक्ट कर लूं, ये हम रीड कर रहे हैं मेमोरी से, और हमने देखा था कि इनपुट पोर्ट का एड्रेस 1234 रखा था, वहां बफर लगाए थे, और उसको हमने रीड किया था। तो यहाँ पे ये वाली रीड इंस्ट्रक्शन है
This should be 199. ये पोर्ट पे 1 राइट इंस्ट्रक्शन है और इसका बनेगा 0x1235 equal to R200. मेमोरी लोकेशन ये वाली। इस केस में जो है वो आपका इस पोर्ट के ऊपर जो है ना, चूंकि राइट कर रहे हैं तो इस पोर्ट का डी फ्लिप फ्लॉप इनेबल होगा। इस केस में आप चूंकि इनेबल कर रहे हैं तो इस पोर्ट के ट्राई स्टेट बफर इनेबल होगा। ये दोनों बस देख लें आपके स्लाइड्स में। ये आपकी आउटपुट पोर्ट है तो ये इसमें डाटा राइट कर सकते हैं, रीड नहीं करेंगे आप, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप से की इनपुट से आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो तो एंड गेट्स आ जाएंगे, उनकी इनपुट से रीड कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं गार्बेज वैल्यू मिलेगी, तो आप रीड नहीं कर सकते। हाँ जी, क्वेश्चन। जी सर, ये जो स्क्वायर बेस है इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? स्क्वायर बेस? जी सर, क्योंकि सर आपने हाँ। आपने R199 में तो बनाया है लेकिन वहां आपने नहीं बनाया जब आप ऊपर पोर्ट बी वाले में कर रहे थे। पोर्ट बी तो आपके हाई लेवल लैंग्वेज है ना। नहीं सर, जब आपने पोर्ट बी का बनाया इक्विवेलेंट तो उसमें आपने R200 के अक्रॉस नहीं बनाया स्क्वायर ब्रेस, लेकिन आपने यहाँ बनाया, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये लो यार, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये कि मेमोरी का पॉइंटर है, R200 एक पॉइंटर है, R200 में क्या वैल्यू पड़ी थी x की, तो बेसिकली ये पॉइंटर जब रिजॉल्व होगा तो ये बन जाएगा जो R2 के अंदर वैल्यू पड़ी है विच इज 0xAA। जब वैल्यू आ जाती है ना फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक सर, समझ आ गया सर। R200 एक पॉइंटर है रजिस्टर फाइल का, उसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है AA। अब इसके क्रॉस में पॉइंटर नहीं लगा सकता, वो फिर डबल डायरेक्शन हो जाएगी कि अगर ये भी पॉइंटर है इसका मतलब कि इस पॉइंट इस एड्रेस पे जाओ फिर वैल्यू पकड़ो। तो ये डबल स्केल का मतलब है कि ये एड्रेस है, ये एक्चुअल डाटा वैल्यू नहीं है, यूजर का डाटा नहीं है। ये यूजर का डाटा सामने जो कोड में नजर आता है वो ये है जब आपने ये लिखा। तो ये जब रिजॉल्व होती है तो ये वैल्यू निकलती है। जरा मेमोरी लोकेशन पे जाके डाटा डालो। अब वो डाटा मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके देखना, उस मेमोरी लोकेशन पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू पड़ी होगी उसमें। फिर ये है कि ये तब ये ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाएगी और 0xAA इक्वल टू 0xAA असाइनमेंट बन जाएगा कि इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के बराबर कर दिया है। तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं, तब ये वैल्यू ये जो है ना मेमोरी लोकेशन पे अंदर जाकर देखेंगे तो ए पड़ा होगा। तो देखें पॉइंटर और वैल्यूज को थोड़ा सा समझें, बहुत जरूरी है ये। इस कोर्स के अंदर आपको समझना जरूरी है कि एक रजिस्टर्ड नंबर कोई और चीज है, उसके अंदर वैल्यू जो पड़ी है वो कोई और चीज है। सही है। तो मैं बहुत ज्यादा जो है ना, मैं देखें आउट ऑफ द वे जाके ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे दो स्लाइड्स मेरी यूज हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी स्पीड हमें तेज करनी चाहिए, तो फिर हम अपने लैब में जो पढ़ना है उसको हम उससे पीछे रह जाएंगे। आपके फिर आप शिकायतें करते हैं इतनी लंबी लंबी कि जी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसका एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ है, थ्योरी पहले बाद में पढ़ी, एक्सपेरिमेंट पहले हो गया। हालांकि थ्योरी एक्सपेरिमेंट की भी हम अलहदा पढ़ते हैं और उसको भी अच्छी तरह समझ लेते हैं, और इस तरह से वो थोड़ा सा उसको डिसजॉइंट तरीके से उसको एज ए ब्लैक बॉक्स समझ लेते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। थ्योरी में जाके हम उसके अंदर जाते हैं। अब आयो पोर्ट को हमने पढ़ लिया, TCP से कंट्रोल करते हैं। अब अगर उसकी थ्योरी थोड़ी देर लेट आ जाती है तो इसमें क्या इशू है?
है कोई इशू? है भाई? तहरीम फातिमा, आपका नाम नजर आ रहा है, आर यू देयर? जी सर। और समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, सही है, सही। उबैद, उबैद बख्तियार, आर यू देयर? जी सर। अच्छा, समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गया। सर एक बात ये बता दें कि जो हमने R200 रजिस्टर नंबर सेलेक्ट किया है उसकी जगह हम हाँ कोई हाँ, और रजिस्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर वो एग्जांपल मैंने नहीं सिलेक्ट किया, वो कंपाइलर ने सिलेक्ट किया है। कंपाइलर के पास सिर्फ ये वेरिएबल नहीं आपने डिक्लेयर किया हुआ था, पूरे प्रोग्राम में ऊपर भी आपने कोई काफी सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। सर ठीक है। तो जब वो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का टाइम आया, तो उसने कहा अच्छा मैंने ये सारे तो ऊपर कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं, कोई अरेज बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी, कुछ पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। हर अरे का हर एलिमेंट एक रजिस्टर को साइन करना पड़ेगा उसे। इसलिए आप बड़ी अरेज बना ही नहीं सकते, नॉट इन माइक्रो कंट्रोलर। तो जब उसने वो सारा कर लिया, यहाँ पे उसकी बारी आई एक्स को मेमोरी साइन करने के लिए, तो उसने, उसके पास ये एड्रेस नंबर था, तो उसने कहा यार ये मैं इसको साइन, ये नहीं हो सकता। शुरू वो R0 से ही करेगा, पहले वेरिएबल को R0 देगा, दूसरे को R1, तीसरे को R2, इस तरह ही चलेगा वो। लेकिन जब वो वेरिएबल एक्स पे आया तो उसके पास पिछले ऊपर वाले सारे ऑलरेडी जो है ना, वो सारे जो थे ना फ्लैट्स, वो उसने किराए पे दे दिए हुए थे। तो उसके पास फिर फ्लैट नंबर 200 ही था जो उस एक्स को वो किराए पे दे सकता था। समझ आ गई ना? जी सर, आ गई। हम्म। तो ये आर्बिट्रेरी नंबर मैं इसलिए रखता हूं कि आपको पता हो कि ये जो कंपाइलर भी ना बड़े आर्बिट्रेरी नंबर रखते हैं। उनकी एल्गोरिदम जो है ना, वो कहीं हंगरी में बैठे हुए किसी बंदा है जिसने वो कंपाइलर डिजाइन किया। कोई दुनिया के लोग, आम आदमी कंपाइलर डिजाइन नहीं कर सकते। कंपाइलर बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, बड़ा मुश्किल काम है। सी से एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कोड जाता है, वो तो सॉल्व प्रॉब्लम है। सी से एक पर्टिकुलर प्रोसेसर को जो कोड बनता है, बैकएंड कंपाइलिंग जो होती है, वो हर प्रोसेसर की डिफरेंट होती है, और उसके लिए कंपाइलर बनाना पड़ता है। दुनिया में जितने भी नए प्रोसेसर बन बन के आ रहे हैं, हर एक का सी कोड तो शायद सॉल्व प्रॉब्लम है उसका। आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में कोड, कोई भी सी कोड हो आंसर सी का, वो इंटरमीडिएट फॉर्म में सबका सेम ही होगा। उसमें बस सिंटैक्स एरर चेकिंग है और एड्रेस रेजोल्यूशन है और इस तरह की प्रॉब्लम है। लाइब्रेरी क्रॉस कॉल चेक हो जाती हैं, सब कुछ। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेसर कोड जनरेशन, क्योंकि उसका बैकएंड का काम होता है, उसमें जाके हुए पर्टिकुलर प्रोसेसर का ही कोड जनरेट होता है, और वो हर प्रोसेसर का डिफरेंट होता है। अगर दो प्रोसेसर का कोड भी सेम होगा तो वो तो प्रोसेसर दोनों एक ही प्रोसेसर है, उनको लहदा लहदा नाम रखने की जरूरत ही नहीं। तो वो हर प्रोसेस जिसका नाम फर्क है, जिसकी वर्जन फर्क है, जिसका इंस्ट्रक्शन से अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन सेट पे जाके प्रोसेसर की कंपाइलर चेंज होता है। अगर दो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट सेम है तो उनका कंपाइलर सेम होगा। So that's the just about the today's lecture. So thank you very much. Hope you have good fun tomorrow in the lab. See you all tomorrow.